زبور کی 5ویں کتاب سام 107 زبور 107 خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکھن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالی کی مشورت کو حقیر جانا۔ اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا، وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں۔ پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو
बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क जमीन। वो जरखेज जमीन को सराय शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क जमीन को पानी के चश्मे। वहां वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं, और वो उनके चौपायों को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म तकलीफ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर जिल्लत उंडेल देता है और उनको बेरा वीराना में भटकाता है। तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकालकर सरफराज करता है और उसके खानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दाना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफकत पर गौर करेंगे। जबूर 105। ऐ खुदा, मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। ऐ खुदावंद, तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। अपने दाहिने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। खुदावंद ने अपनी कदूसियत में ये फरमाया है, मैं खुशी करूंगा, मैं सिकम को तकसीम करूंगा और सुकात की वादी को बांटूंगा। जलाद मेरा है, मनस्सी मेरा है, इफ्राइम मेरे सिर का खुद है, यहूदा मेरा आसा है, मुआब मेरी चेलची है। अदोम पर मैं जूता फेंकूंगा, मैं फलस्तीन पर ललकारूंगा। मुझे उस फसीलदार शहर में कौन पहुंचाएगा? कौन मुझे अदोम तक ले गया है? ऐ खुदा, क्या तूने हमें रद्द नहीं कर दिया? ऐ खुदा, तू हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। मुखालिफ के मुकाबला में हमारी कुमक कर, क्योंकि इंसानी मदद अबस है। खुदा की बदौलत हम दिलावरी करेंगे, क्योंकि वही हमारे मुखालिफों को पामाल करेगा। जबूर 109। ऐ खुदा, मेरे महमूद खामोश ना रह, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी जुबान से मुझसे बातें की हैं। उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया और बेसबब मुझसे लड़े हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूं। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत। तू किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे।
जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, उसकी उम्र कोताह हो जाए और उसका मनसिब कोई दूसरा ले ले, उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगें, उनको अपने वीरान मुकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े, कर्ज खा उसका सब कुछ छीन ले और परदेसी उसकी कमाई लूट लें। कोई न हो जो उस पर शफकत करे, ना कोई उसके यतीम बच्चों पर तरस खाए, उसकी नस्ल कट जाए और दूसरी पुश्त में उसका नाम मिटा दिया जाए, उसके बाप दादा की बदी खुदावंद के हजूर याद रहे और उसकी मां का गुनाह मिटाया ना जाए, वो बराबर खुदावंद के सामने रहें, ताकि वो जमीन पर से उनका जिक्र मिटा दे, इसलिए कि उसने रहम करना याद न रखा, पर गरीब और मोहताज और शिकस्ता दिल को सताया, ताकि उनको मार डाले, बल्कि लानत करना उसे पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी, और दुआ देना उसे मरगूब ना था, सो वो उससे दूर रही। उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना, और वो पानी की तरह उसके बातिन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। वो उसके लिए उसकी पोशाक की मानिंद हो जिसे वो पहनता है, और उसके पटके की जगह जिससे वो अपनी कमर कसे रहता है। खुदावंद की तरफ से मेरे मुखालिफों का और मेरी जान को बुरा कहने वालों का यही बदला है। लेकिन ए मालिक खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझ पर एहसान कर, मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरी शफकत खूब है, इसलिए कि मैं गरीब और मोहताज हूं, और मेरा दिल मेरे पहलू में जख्मी है। मैं ढलते साया की तरह जाता रहा, मैं टिड्डी की तरह उड़ा दिया गया। फाका करते करते मेरे घुटने कमजोर हो गए, और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। मैं उनकी मलामत का निशाना बन गया हूं। जब वो मुझे देखते हैं तो सिर हिलाते हैं। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी मदद कर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे बचा ले, ताकि वो जान लें कि इसमें तेरा हाथ है, और तू ही ने ऐ खुदावंद ये किया है। वो लानत करते रहें, पर तू बरकत दे। जब वो उठेंगे तो शर्मिंदा होंगे, पर तेरा बंदा शादमान होगा। मेरे मुखालिफ जिल्लत से मुलब्बिस हो जाएं, और अपनी ही शर्मिंदगी को चादर की तरह ओढ़ लें। मैं अपने मुंह से खुदावंद का बड़ा शुक्र करूंगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूंगा, क्योंकि वो मोहताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। जबूर 110। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरे जोर का आसा सहून से भेजेगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं, और सुबह के बतन से शबनम की मानिंद। खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं, कि तू मिल्किसदक के तौर पर अब तक काहिन है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन
बादशाहों को छेद डालेगा। वो कौमों में अदालत करेगा। वो लाशों के ढेर लगा देगा और बहुत से मुल्कों में सिरों को कुचलेगा। वो राह में नदी का पानी पिएगा, इसलिए वो सिर को बुलंद करेगा। जबूर 111। मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं। जो उनमें मसरूर हैं, उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं, और उसकी सदाकत अब तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीम व करीम है। वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। उसने कौमों की मेरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर उनको दिखाया। उसके हाथों के काम बरहक और पुरअदल हैं। उसके तमाम कवानीन रास्त हैं। वो अब्दुल आबाद कायम रहेंगे। वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कद्दूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। उसकी सताइश अब तक कायम है। जबूर 112। खुदावंद की हम्द करो। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादत मंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। उसे कभी जुम्बश न होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। उसका दिल बरकरार है। वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मुहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुढ़ेगा। वो दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। जबूर 113। खुदावंद की हम्द करो। ऐ खुदावंद के बंदो, हम्द करो। खुदावंद के नाम की हम्द करो। अब से अब तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तलू से गरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंद बाला है। उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, जो फरौतनी से आसमानो जमीन पर नजर करता है। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है, ताकि उसे उम्रा के साथ यानी अपनी कौम के उम्रा के साथ बिठाए।
वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 114। जब इस्राएल मिस्र से निकल आया, यानी याकूब का घराना अजनबी जुबान वाली कौम में से, तो यहूदा उसका मकदस और इस्राएल उसकी मुमलकत ठहरा। ये देखते ही समुंदर भागा, यरदन पीछे हट गया, पहाड़ मेंढों की तरह उछले, पहाड़ियां भेड़ के बच्चों की तरह कूदी। ऐ समुंदर, तुझे क्या हुआ कि तू भागता है? ऐ यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू पीछे हटता है? ऐ पहाड़ों, तुमको क्या हुआ कि तुम मेंढों की तरह उछलते हो? ऐ पहाड़ियों, तुमको क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चों की तरह कूदती हो? ऐ जमीन, तू रब के हजूर, याकूब के खुदा के हजूर थरथरा, जो चट्टान को झील और चकमाक को पानी का चश्मा बना देता है। जबूर 115। हमको नहीं, ऐ खुदावंद, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को और अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। कौमें क्यों कहें, अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है। उसने जो कुछ चाहा वो ही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं, पर वो बोलते नहीं। आंखें हैं, पर वो देखते नहीं। उनके कान हैं, पर वो सुनते नहीं। नाक हैं, पर वो सूंघते नहीं। उनके हाथ हैं, पर वो छूते नहीं। पांव हैं, पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर तवक्कुल कर, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। ऐ हारून के घराने, खुदावंद पर तवक्कुल कर, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद पर तवक्कुल करो, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। खुदावंद ने हमको याद रखा, वो बरकत देगा। वो इस्राएल के घराने को बरकत देगा। वो हारून के घराने को बरकत देगा। जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सब को बरकत देगा। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। लेकिन अब से अब तक खुदावंद को मुबारक कहेंगे। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 116। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं, क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं,
मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसने मुझे बचा लिया। ऐ मेरी जान, फिर मुतमिन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कद्र है। आह, ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूं। तूने मेरे बंधन खोले हैं। मैं तेरे हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद के घर की बारगाहों में तेरे अंदर, ए यरूशलेम, खुदावंद की हम्द करो। जबूर 117। ए कौमों, सब खुदावंद की हम्द करो। ए उम्मतों, सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 118। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। इसराइल अब कहे, उसकी शफकत अबदी है। हारून का घराना अब कहे, उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद से डरने वाले अब कहें, उसकी शफकत अबदी है। मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावंद मेरी तरफ, मेरे मददगारों में है। इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बुझ गए। मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावंद ने मेरी मदद की। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वो ही मेरी निजात हुआ। सादिकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागिनी है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है, खुदावंद का दाहिना हाथ बुलंद हुआ है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है। मैं मरूंगा नहीं, बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा।
खुदावन ने मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाला नहीं किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का फाटक यही है, सादिक इससे दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना है। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ऐ खुदावंद बचा ले, ऐ खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। ज़बूर 119। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश कि तेरे आईन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना हूंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आईन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क न कर दे। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आईन में मसरूर रहूंगा। मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं। अपने फरमान मुझसे पोशीदा ना रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। तूने उन मालून मगरूरों को झिड़क दिया जो तेरे फरमान से भटकते रहते हैं। मलामत और हकारत को मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैंने तेरी शहादतें मानी हैं। उम्रा भी बैठकर मेरे खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन तेरा बंदा तेरे आईन पर ध्यान लगाए रहा। तेरी शहादतें मुझे मरगूब
और मेरी मुशीर हैं। मेरी जान खाक में मिल गई। तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मैंने अपनी रविशों का इजहार किया और तूने मुझे जवाब दिया। मुझे अपने आइन की तालीम दे, अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे, और मैं तेरे अजायब पर ध्यान करूंगा। गम के मारे मेरी जान घुली जाती है। अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीयत दे। झूठ की राह से मुझे दूर रख और मुझे अपनी शरीयत अनायत फरमा। मैंने वफादारी की राह इख्तियार की है। मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे हैं। मैं तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूं। ऐ खुदावंद, मुझे शर्मिंदा न होने दे। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ना कि लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। अपने बंदा के लिए अपना वो कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा होता है। मेरी मलामत को, जिससे मैं डरता हूं, दूर कर दे, क्योंकि तेरे अहकाम भले हैं। देख, मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूं। मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर। ऐ खुदावंद, तेरे कौल के मुताबिक तेरी शफकत और तेरी निजात मुझे नसीब हों। तब मैं अपने मलामत करने वालों को जवाब दे सकूंगा, क्योंकि मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूं और हक बात को मेरे मुंह से हरगिज जुदा न होने दे, क्योंकि मेरा एतमाद तेरे अहकाम पर है। बस मैं अब्दुल अबाद तेरी शरीयत को मानता रहूंगा और मैं आजादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। मगरूरों ने मुझे बहुत ठट्ठों में उड़ाया, तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। ऐ खुदावंद, मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहा हूं। उन शरीरों के सबब से जो तेरी शरीयत को तर्क करते हैं, मैं सख्त तैश में आ गया हूं। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं। ऐ खुदावंद, रात को मैंने तेरा नाम याद किया है और तेरी शरीयत पर अमल किया है। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। खुदावंद मेरा बकरा है, मैंने कहा है, मैं तेरी बातें मानूंगा। मैं पूरे दिल से तेरे करम का खाहा हुआ। अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर न लगाई। शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया,
पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। ऐ खुदावंद, जमीन तेरी शफकत से मामूर है, मुझे अपने आइन सिखा। ऐ खुदावंद, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है। मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूं। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। तू भला है और भलाई करता है, मुझे अपने आइन सिखा। मगरूरों ने मुझ पर बोहतान बांधा है, मैं पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानूंगा। उनके दिल चिकनाई से फरबा हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। मुझे फहम अता कर, ताकि तेरे फरमान सीख लूं। तुझसे डरने वाले मुझे देख कर खुश होंगे, इसलिए कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे अहकाम की सदाकत को जानता हूं, और ये कि वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला। उस कलाम के मुताबिक जो तूने अपने बंदा से किया, तेरी शफकत मेरी तसल्ली का बायस हो। तेरी रहमत मुझे नसीब हो, ताकि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। मगरूर शर्मिंदा हों, क्योंकि उन्होंने नाहक मुझे गिराया, लेकिन मैं तेरे कवानीन पर ध्यान करूंगा। तुझसे डरने वाले मेरी तरफ रजू हों, तो वो तेरी शहादतों को जान लेंगे। मेरा दिल तेरे आइन मानने में कामिल रहे, ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। मैं उस मशकीजा की मानिंद हो गया जो धुएं में हो, तो भी मैं तेरे आइन को नहीं भूलता। तेरे बंदा के दिन ही कितने हैं, तू मेरे सताने वालों पर कब फतवा देगा। मगरूरों ने जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं, मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरे सब फरमान बरहक हैं, वो नाहक मुझे सताते हैं। तू मेरी मदद कर। उन्होंने मुझे जमीन पर से फनाही कर डाला था, लेकिन मैंने तेरे कवानीन को तर्क ना किया। तू मुझे अपनी शफकत के मुताबिक जिंदा कर, तो मैं तेरे मुंह की शहादत को मानूंगा। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तूने जमीन को कयाम बख्शा और वो कायम है। वो आज तेरे अहकाम के मुताबिक कायम है, क्योंकि सब चीजें तेरी खिदमत गुजार हैं। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती, तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया है। मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। आह, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं।
मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूँ कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐ खुदावंद, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। मेरी जान हमेशा हथेली पर है, तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। मैंने तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बनाया है, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। मुझे दो दिलों से नफरत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूँ। तू मेरे छिपने की जगह और मेरी सिपर है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। ऐ बद किरदारो, मुझसे दूर हो जाओ, ताकि मैं अपने खुदा के फरमान पर अमल करूं। तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल, ताकि जिंदा रहूं, और मुझे अपने एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा, और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। तूने उन सब को हकीर जाना है जो तेरे आइन से भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी दगाबाजी अबस है। तू जमीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है। इसलिए मैं तेरी शहादतों को अजीज रखता हूँ। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है, और मैं तेरे अहकाम से डरता हूँ। मैंने अदल और इंसाफ किया है। मुझे उनके हवाला ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। भलाई के लिए अपने बंदा का जामिन हो। मगरूर मुझ पर जुल्म ना करें। तेरी निजात और तेरी सदाकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। अपने बंदा से अपनी शफकत के मुताबिक सलूक कर और मुझे अपने आइन सिखा। मैं तेरा बंदा हूँ, मुझको फहम अता कर, ताकि तेरी शहादतों को समझ लूं। अब वक्त आ गया कि खुदावंद काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूँ, और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। मैं खूब मुंह खोल कर हाँफता रहा, क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था।
मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। इंसान के जुल्म से मुझे छुड़ा ले, तो तेरे आइन पर अमल करूंगा। अपना चेहरा अपने बंदा पर जलवागर फरमा और मुझे अपने आइन सिखा। मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। ऐ खुदावंद, तू सादिक है और तेरे अहकाम बरहक हैं। तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया है। मेरी गैरत मुझे खा गई, क्योंकि मेरे मुखालिफ तेरी बातें भूल गए। तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। मैं अदना और हकीर हूं, तो भी मैं तेरे कवानीन को नहीं भूलता। तेरी सदाकत अबदी सदाकत है और तेरी शरीयत बरहक है। मैं तकलीफ और अजाब में मुब्तला हूं, तो भी तेरे फरमान मेरी खुशनुदी हैं। तेरी शहादतें हमेशा रास्त हैं। मुझे फहम अता कर, तो मैं जिंदा रहूंगा। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूं, ऐ खुदावंद, मुझे जवाब दे। मैं तेरे आइन पर अमल करूंगा। मैंने तुझसे दुआ की है, मुझे बचा ले, और मैं तेरी शहादतों को मानूंगा। मैंने पौ फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं, ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। अपनी शफकत के मुताबिक मेरी फरियाद सुन। ऐ खुदावंद, अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। जो शरारत के दर पे रहते हैं, वो नजदीक आ गए, वो तेरी शरीयत से दूर हैं। ऐ खुदावंद, तू नजदीक है और तेरे सब फरमान बरहक हैं। तेरी शहादतों से मुझे कदीम से मालूम है कि तूने उनको हमेशा के लिए कायम किया है। मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। मेरी वकालत कर और मेरा फिदया दे। अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। निजात शरीरों से दूर है, क्योंकि वो तेरे आयन के तालिब नहीं हैं। ऐ खुदावंद, तेरी रहमत बड़ी है। अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मेरे सताने वाले और मुखालिफ बहुत हैं, तो भी मैंने तेरी शहादतों से किनारा नहीं किया। मैं दगाबाजों को देखकर मलूल हुआ, क्योंकि वो तेरे कलाम को नहीं मानते। ख्याल फरमा कि मुझे तेरे कवानीन से कैसी मोहब्बत है। ऐ खुदावंद, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदा कर। तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं। उम्रा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूं। मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। ऐ खुदावंद, मैं तेरी निजात का उम्मीदवार रहा हूं और तेरे फरमान बजा लाया हूं। मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी हैं और वो मुझे नहायत अजीज हैं। मैंने तेरे कवानीन और शहादतों को माना है, क्योंकि मेरी सब रवशें तेरे सामने हैं।
ऐ खुदावंद, मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर। मेरी इल्तिजा तेरे हजूर पहुंचे। अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा। मेरे लबों से तेरी सताइश हो, क्योंकि तू मुझे अपने आइन सिखाता है। मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाए, क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं। तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन इख्तियार किए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरी निजात का मुश्ताक रहा हूं, और तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। मेरी जान जिंदा रहे तो वो तेरी सताइश करेगी, और तेरे अहकाम मेरी मदद करें। मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं। अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। जबूर 120। मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की, और उसने मुझे जवाब दिया। झूठे होंठों और दगाबाज जुबान से, ऐ खुदावंद, मेरी जान को छुड़ा। ऐ दगाबाज जुबान, तुझे क्या दिया जाए, और तुझसे और क्या किया जाए। जबरदस्त के तेज तीर झाव के अंगारों के साथ मुझ पर अफसोस कि मैं मस्क में बसता और केदार के खैमों में रहता हूं। सुलह के दुश्मन के साथ रहते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई। मैं तो सुलह दोस्त हूं, पर जब बोलता हूं तो वो जंग पर आमादा हो जाते हैं। जबूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। तेरा मुहाफिज ऊंगने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदाबंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदाबंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। जबूर 122। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो, जहां कबीले यानी खुदावंद के कबीले इस्राएल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबाल मंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबाल मंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदाबंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। जबूर 123। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें
अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्खुर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर हो गई। जबूर 124। अब इस्राएल यूं कहे, अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता, अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो जब उनका कहर हम पर भड़का था, वो हमको जीता ही निगल जाते। उस वक्त पानी हमको डबो देता और सैलाब हमारी जान पर से गुजर जाता। उस वक्त मौजजन पानी हमारी जान पर से गुजर जाता। खुदावंद मुबारक हो, जिसने हमें उनके दांतों का शिकार न होने दिया। हमारी जान चिड़िया की मानिंद चिड़ीमारों के जाल से बच निकली। जाल तो टूट गया और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। जबूर 125। जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं, वो कोहे सयोन की मानिंद हैं, जो अटल बल के हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। क्योंकि शरारत का आसा सादिकों की मेरास पर कायम न होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। ऐ खुदावंद, भलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो रास्त दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, उनको खुदावंद बद किरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इस्राएल की सलामती हो। जबूर 126। जब खुदावंद सैय्योन के असीरों को वापस लाया, तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है, वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। जबूर 127। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे, तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है, और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी जिसका तर्कश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे, तो शर्मिंदा न होंगे। जबूर 128। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता
और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयोन में से तुझको बरकत देगा, और तू उम्र भर खुदावंद की भलाई देखेगा, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। जबूर 129। इस्राएल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, तो भी वो मुझ पर गालिब न आए। हिलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रेगारियां बनाई। खुदावंद सादिक है, उसने शरीरों की रस्सियां काट डाली। सयोन से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पिसपा हों। वो छत पर की घास की मानिंद हों, जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। जबूर 130। ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज सुन ले। मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए, तो ऐ खुदावंद, कौन कायम रह सकेगा? पर मगफरत तेरे हाथ में है, ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं। मेरी जान मुंतजिर है, और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है। उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है, और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। जबूर 131। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं, और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। जबूर 132। ऐ खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर, कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादिर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल हूंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा, और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो,
हमने इसकी खबर अफराता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पांव की चौकी के सामने सिजदा करेंगे। उठ ए खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक। तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बिस हों और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारें। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर, जो मैं उनको सिखाऊंगा, अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सयोन को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिज्क में खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। इसके काहिनों को भी मैं निजात से मुलब्बिस करूंगा, और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। मैंने अपने ममसू के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। जबूर 133। देखो, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सिर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की औस की मानिंद है जो सयोन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। जबूर 134। ऐ खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयोन में से तुझे बरकत बख्शे। जबूर 135। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ऐ खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदा सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मिल्कियत के लिए चुन लिया है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समुंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखजनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पहलोठों को मारा, क्या इंसान के, क्या हैवान के। ऐ मिस्र, उसी ने तुझ में फिरौन और उसके सब खादिमों पर
निशान और अजायब जाहिर किए। उसने बहुत सी कौमों को मारा और जबरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। अमोरियों के बादशाह सहियोन को और बसन के बादशाह औज को और केनान की सब मुमलकतों को और उनकी जमीन मेरास कर दी, यानी अपनी कौम इस्राएल की मिरास। ऐ खुदावंद, तेरा नाम अबदी है और तेरी यादगार ऐ खुदावंद पुश्त दर पुश्त कायम है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना हैं, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इस्राएल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सयोन में खुदावंद मुबारक हो, वो यरूशलेम में सकूनत करता है। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 136। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो, कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, कि उसकी शफकत अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, कि उसकी शफकत अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए माहताब और सितारे, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने मिस्र के पहलोठों को मारा, कि उसकी शफकत अबदी है। और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया, कि उसकी शफकत अबदी है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बहरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया, कि उसकी शफकत अबदी है। और इस्राएल को उसमें से पार किया, कि उसकी शफकत अबदी है। लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलजम में डाल दिया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा, कि उसकी शफकत अबदी है। और नामवर बादशाहों को कत्ल किया, कि उसकी शफकत अबदी है। अमोरियों के बादशाह सहियोन को, कि उसकी शफकत अबदी है। और बसन के बादशाह औज को, कि उसकी शफकत अबदी है। और उनकी जमीन मेरास कर दी, कि उसकी शफकत अबदी है, यानी अपने बंदा इस्राएल की मेरास, कि उसकी शफकत अबदी है। जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया, कि उसकी शफकत अबदी है। और हमारे मुखालिफों से हमको छुड़ाया, कि उसकी शफकत अबदी है। जो सब बशर को रोजी देता है, कि उसकी शफकत अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो, कि उसकी शफकत अबदी है।
जबूर 137। हम बाबल की नदियों पर बैठे और सयोन को याद करके रोए। वहां बैद के दरख्तों पर उनके उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा, सयोन के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं? ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। ऐ खुदावंद, यरूशलेम के दिन को बनी अदोम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे, इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। ऐ बाबल की बेटी, जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। जबूर 138। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचा बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। जबूर 139। ऐ खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख, तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला
रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। ऐ खुदा, काश कि तू शरीर को कत्ल करे। इसलिए ऐ खूनखारो, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि वो शरारत से तेरे खिलाफ बातें करते हैं, और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफायदा लेते हैं। ऐ खुदावंद, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता? और क्या मैं तेरे मुखालिफों से बेजार नहीं हूं? मुझे उनसे पूरी अदावत है, मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूं। ऐ खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल। जबूर 140। ऐ खुदावंद, मुझे बुरे आदमी से रिहाई बख्श, मुझे तुंदखो आदमी से महफूज रख, जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं। वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है। उनके होंठों के नीचे इफ्फी का जहर है। ऐ खुदावंद, मुझे शरीर के हाथ से बचा, मुझे तुंदखो आदमी से महफूज रख, जिनका इरादा है कि मेरे पांव उखाड़ दें। मगरूरों ने मेरे लिए फंदे और रस्सियों को छुपाया है। उन्होंने राह के किनारे जाल लगाया है। उन्होंने मेरे लिए दाम बिछा रखे हैं। मैंने खुदावंद से कहा, मेरा खुदा तू ही है। ऐ खुदावंद, मेरी इल्तिजा की आवाज पर कान लगा। ऐ खुदावंद मेरे मालिक, ऐ मेरी निजात की कुवत, तूने जंग के दिन मेरे सिर पर साया किया है। ऐ खुदावंद, शरीर की मुराद पूरी ना कर, उसके बुरे मंसूबा को अंजाम ना दे, ताकि वो डींग ना मारे। मुझे घेरने वालों के मुंह की शरारत उन्हीं के सिर पर पड़े। उन पर अंगारे गिरें, वो आग में डाले जाएं, और ऐसे गड्ढों में कि फिर ना उठें। बदजुबान आदमी को जमीन पर कयाम ना होगा। आफत तुंदखो आदमी को रिगत कर हलाक करेगी। मैं जानता हूं कि खुदावंद मुसीबत ज़दा के मामला की और मोहताज के हक की ताईद करेगा। यकीनन सादिक तेरे नाम का शुक्र करेंगे, और रास्तबाज तेरे हजूर में रहेंगे। जबूर 141। ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ।
जब मैं तुझसे दुआ करूं, तू मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल न होने दे, कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए, और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सिर पर रोगन होगा। मेरा सिर इससे इनकार न करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। उनके हाकिम चट्टान के किनारों पर से गिरा दिए गए हैं, और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरी हैं। जैसे कोई हल चलाकर जमीन तोड़ता है, वैसे ही हमारी हड्डियां पाताल के मुंह पर बिखरी पड़ी हैं। क्योंकि ऐ मालिक खुदाबंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मेरी जान को बेकस ना छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और बद किरदारों के दाम से बचा। शरीर आप अपने जाल में फंसें, और मैं सलामत बच निकलूं। जबूर 142। मैं अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद से फरियाद करता हूं। मैं अपनी ही आवाज से खुदावंद से मिन्नत करता हूं। मैं उसके हुजूर फरियाद करता हूं। मैं अपना दुख उसके हुजूर बयान करता हूं। जब मुझ में मेरी जान निढाल थी, तू मेरी राह से वाकिफ था। जिस राह पर मैं चलता हूं, उसमें उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरे लिए कहीं पनाह न रही, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। ऐ खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की। मैंने कहा, तू मेरी पनाह है, और जिंदों की जमीन में मेरा बखरा। मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, क्योंकि मैं नहायत पस्त हो गया हूं। मेरे सताने वालों से मुझे रिहाई बख्श, क्योंकि वो मुझसे जोरावर हैं। मेरी जान को कैद से निकाल, ताकि तेरे नाम का शुक्र करूं। सादिक मेरे गिर्द जमा होंगे, क्योंकि तू मुझ पर एहसान करेगा। जबूर 143। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान लगा। अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे, और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। इसलिए कि दुश्मन ने मेरी जान को सताया है, उसने मेरी जिंदगी को खाक में मिला दिया, और मुझे अंधेरी जगहों में उनकी मानिंद बसाया है, जिनको मरे मुद्दत हो गई हो। इसी सबब से मुझ में मेरी जान निढाल है, और मेरा दिल मुझ में बेकल है। मैं गुज़श्ता जमानों को याद करता हूं, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं, और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूं। मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूं। मेरी जान खुश्क जमीन की मानिंद तेरी प्यासी है। ऐ खुदावंद, जल्द मुझे जवाब दे। मेरी रूह गुदाज हो चली, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। ऐसा ना हो
کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر۔ اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال۔ اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال، اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ زبور 144۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا۔ وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند، انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بتلان کی مانند ہے، اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہیں۔ اے خداوند، آسمانوں کو جھکا کر اترا، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا۔ بجلی گرا کر ان کو پراگندہ کر دے، اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے، اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ اے خدا، میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، دستار والی بربت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے، اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں کاداور پودوں کی مانند ہوں، اور ہماری بیٹیاں محل کے کونوں کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے خطے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج، اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ خیال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ زبور 145۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر
और तेरे अजायब पर गौर करूंगा, और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की याद का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है, और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी, और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है, और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, और उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी, और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे। जबूर 146। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। ना उम्रा पर भरोसा कर, ना आदमजाद पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है, और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आजाद करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐ सहून, तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 147। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदा की मदा सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है। वो इस्राएल के जलावतनों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है।
हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है। उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है। वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ। सितार पर हमारे खुदा की मदा सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो जमीन के लिए मी तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है, और कौवे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं, और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की सताइश कर। ऐ सैहून, अपने खुदा की सताइश कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंडों को मजबूत किया है। उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है। वो तेरी हदूद में अमन रखता है। वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूं से आसूदा करता है। वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है। उसका कलाम नहायत तेज रौ है। वो बर्फ को ऊन की मानिंद गिराता है, और पाले को राख की मानिंद बखेरता है। वो यख को लुकमों की मानिंद फेंकता है। उसकी ठंड कौन सह सकता है। वो अपना कलाम नाजल करके उनको पिघला देता है। वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है। वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करता है, और अपने आईनो अहकाम इसराइल पर। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया, और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 148। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके फरिश्तों, सब उसकी हम्द करो। ऐ उसके लश्करों, सब उसकी हम्द करो। ऐ सूरज, ऐ चांद, उसकी हम्द करो। ऐ नूरानी सितारों, सब उसकी हम्द करो। ऐ फलकुल अफलाक, उसकी हम्द करो। और तू भी ऐ फिजा पर के पानी। ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल अबाद के लिए कायम किया है। उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो। ऐ अजदहाओ और सब गहरे समुंदरों, ऐ आग और ओलो, ऐ बर्फ और कोहर, ऐ तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है। ऐ पहाड़ों और सब टीलों, ऐ मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ऐ जानवरों और सब चौपायों, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ऐ उमरा और जमीन के सब हाकिमों, ऐ नौजवानों और कमवारियों, ऐ बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है। उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है, और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इस्राएल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द करो।
जबूर 149। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदाने सहून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में वो दो धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरबराहों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 150। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो। बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो। जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफिस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो।